गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हो रहे होंगे, सुरक्षित होंगे, वट एवर प्लेसेस यू ऑल आर। एंड आई एम श्योर एवरीथिंग इज गोइंग वेल इन योर लाइफ, वट एवर यू पीपल आर डूइंग। हम सभी जानते हैं महासंग्राम बिहार का शुरू हो चुका है, एंड इट्स नॉट लेस दैन सो कॉल्ड महाभारत. All parties are busy in selection of seats, processes, and all that formalities. And they must be doing all that because election is at hand. It's gonna be conducted very soon in Bihar. सरकार को आप सभी की चिंता तो है नहीं, आप लोगों ने देख लिया होगा. There is corona in Bihar, there is over flooded, there is a flood in Bihar, and after all, government called Nitish ji is busy in election campaigning. They all these idiots are doing virtual rally nowadays. मतलब उनको कोई चिंता नहीं है आपकी, उनको बस अपने सत्ता और कुर्सी की चिंता है. ना दैट इज व्हाई दे ऑल आर बिजी इन डूइंग ऑल दैट वर्चुअल रैली एंड ऑल दैट मीटिंग्स. लेकिन अब आप लोगों को भी सोचने की जरूरत है. If this government is not going to think about you people, then now you have to also take your own decision. सरकार को बदलने की जरूरत आ गई है और ऑप्शन आपके पास हैं. उस ऑप्शन को यू जस्ट हैव टू ग्रैब इट विथ बोथ हैंड्स. आपको बिहार का एक ऐसा युवा नेता मिला है. ही इज a फ्यूचर ऑफ बिहार. ही इज you can say development is going to happen across Bihar once he'll be a chief minister of Bihar. I must tell you that. Just we need to give him just one chance, and let's see what he's going to do after that. And I'm sure once he'll be in power, like once Tejashwi Yadav will be CM of this state, development is going to happen across the Bihar. Like Nitish Kumar, it's not going to happen only on paper, or it's not going to happen in media. It's going to reach to ground level. Development is going to happen on reality. It's going to reach to people of Bihar rather than on paper or in media what Nitish Kumar has been doing for last 15 years. Nitish development is only on the papers. It's only in the media. That's it. नीतीश जी, वैसी हम लोग को डेवलपमेंट नहीं चाहिए. We want a really development across Bihar. You have been ruling this state since 15 years. उसके बाद भी no industry has set up. No good colleges are opening up. And that is why every year, I'm sorry to tell you that every year lakhs of students, they are moving to metro cities for their higher qualification and for their higher academic education. They are going to Bangalore, they are going to Bombay, they are going to Delhi, because they don't have good education option in their state, and that is why they are moving every year. हॉस्पिटल्स की वही हालात हैं.
And that is why patients are going out, they are going Delhi AIIMS, they are going Bombay for their treatment. लॉ एंड ऑर्डर की वही सिचुएशन है. And I don't know why and how he is still sitting on this important chair of state. Why you people are not throwing him out immediately? I'm telling you, he has no right to sit on this important chair of the state. Whatever I'm talking about right now, it's primary job of any chief minister of a state, and he's not doing it all. And after all, he's sitting on this important chair of our state. इलेक्शन 1-2 महीना में हो जाएगी. आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों से अपील करता हूँ कि इस सरकार को बदलें और एक नई सरकार का गठन हो, एक युवा सरकार लाएं. आप लोग को एक युवा वॉइस मिल चुका है, बस मेंटालिटी को ब्रॉड करना होगा. I know you all are mature people, you all are intelligent people of our state, बट थोड़ा सा माइंड को और ब्रॉड करने की ज़रूरत है, जाति, कास्टिज्म और रिलीजन से ऊपर उठकर. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल युवाओं की कोई जात नहीं होती है, मैं ये बोलना चाहूँगा. मैं एक युवा हूँ, सो आई अंडरस्टैंड कि एक युवा क्या सोचता है, और युवाओं की कोई जात नहीं होती है. सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी कि डू नॉट go and cast your vote in just favor of casteism or religion. It's all a nonsense that BJP is doing over the years. But आप सभी कास्टिज्म, रिलीजन से ऊपर उठकर वोट करें, एक नई सरकार का गठन करें, तभी कुछ बिहार में डेवलपमेंट और कुछ भी जो आप सोचते हैं, एक अच्छा बिहार बने, एक बिहार को भी बाहर अच्छे नज़रिए से लोग देखें, जो अभी नहीं देखा जाता है. I have been out for last I think 10 or 12 years from Bihar, and wherever I'm going, like if I'm going Bombay, if I'm going in Bangalore, मतलब उनका नज़रिया बिहारियों को लेके ज़्यादा अच्छा नहीं है. तो ये बदलने की ज़रूरत है, और ये सब हमारे हाथ में है. हम जिस दिन चाह लें, हम एक युवा हैं, और युवा जो चाह लेता है कर लेता है. और आप लोगों को ऑप्शन मिला है, बस जाकर इलेक्शन के दिन, चुनाव के दिन जाकर बस उसके फेवर में वोटिंग करनी है. एंड देन आई एम श्योर ही इज़ गोइंग टू बी चीफ मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट, एंड देन डेवलपमेंट इज़ गोइंग टू बी अक्रॉस द बिहार. सो अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को कि एक अच्छी सरकार बनाएं जो आपके भविष्य के बारे में सोचे, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे, आपके भविष्य के बारे में सोचे, जहां बाहर भी हमारे राज्य को अच्छे नज़र से देखा जाए, जो अभी नहीं देखा जाता है. ड्यू टू ऑल दिस politician called Nitish and all that rubbish, man. और मैं अपने पार्टी के लोगों से भी कहना चाहूँगा, नो डाउट अबाउट दैट, हमारा संगठन बहुत बड़ा है, हमारी पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है. सो नो डाउट कि हमारे कार्यकर्ता भी बहुत हैं, और दे हैव बीन डूइंग extraordinary job for last 13 years. I know them and I'm really proud of them कि वो इतने साल से हमारे पार्टी के साथ जुड़े हैं, and they are doing extraordinary job in favor of RJD. I'm really proud of you guys. But थोड़ा सा हम सभी को, आप सभी को ब्रॉडर होने की ज़रूरत है. You have to be little bit broader as far as ticket selections and all that processes are concerned.
सी हमारा संगठन बड़ा है, एज आई सेड जस्ट नाउ, सो इट्स नॉट पॉसिबल कि सबको टिकट मिल जाए. आई नो कि यू ऑल आर डूइंग हार्ड वर्क जॉब इन योर कंस्टिट्यूएंसी और इन योर डिस्ट्रिक्ट, बट आफ्टर ऑल पार्टी की भी मजबूरियां हैं. 242 सीट ही तो है बिहार विधानसभा की, उसमें भी हमारी पार्टी कोलिशन में कॉन्टेस्ट करने जा रही है. सो नंबर ऑफ सीट्स विल बी लेसर एज फार एज लाइक कोलिशन इज कंसर्न. सो सभी को टिकट नहीं मिलने जा रही है. तो बिंग रियल कार्यकर्ता ऑफ आरजेडी, इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम पार्टी की मजबूरियों को समझें, अपने नेता की मजबूरियों को समझें. और हमारे नेता ने हमेशा हर मन से कहा है कि आप लोग अपने लड़ाई को भूलकर, अपनी आपसी द्वेष को भूलकर हमारी सरकार लाएं. हम जितना ज़्यादा से लोगों को एकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेटल करेंगे अपनी पार्टी में वंस आई विल बी इन पावर. उन्होंने कितने मन से कहा है. सो मैं अपने नेता के बिहाफ पे और अपने पार्टी के बिहाफ पे आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बस इस बार लालू जी के नाम पर वोट करें, राष्ट्रीय जनता दल के नाम पर वोट करें, युवा नेता और युवा भविष्य तेजस्वी यादव जी के नाम पर वोट करें. ये भूल जाए कि किसको टिकट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है. और ये भूलने की ज़रूरत आ गई है, नहीं तो फिर जैसे 15 साल इन्होंने लूटा ना, इस बार आएंगे तो 20 साल लूटेंगे और जो हालात हैं और दिन पर दिन खराब होती जाएंगे. सो छोटी फायदा देखकर प्लीज़ आप लोग बड़ी फायदा सोचें. एंड दैट इज़ वाई आई एम कीप टेलिंग यू गाइज, प्लीज़ बी लिटिल ब्रॉडर. मतलब सोच को थोड़ा ब्रॉडर करने की जरूरत आ गई है. दिस इज एक्चुअली नीड ऑफ दिस प्रेजेंट आवर, आई मस्ट टेल यू गाइज. अदरवाइज we are going to suffer a lot in coming future once these people are going to be in power. So everything is in your hands. You all are the right people to take your right decision. And I'm sure you people are mature enough, as I said earlier, you people are mature enough, you people are intelligent enough to take your right decision at the right time. And I'm sure you all are going to cast your vote in favor of RJD or in favor of young Tejasvi Yadav. और विधानसभा के अपने कार्यकर्ताओं से भी मैं विनती करूंगा, हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि अपने चॉइस के कैंडिडेट को सपोर्ट ना करें, रादर दैन आप पार्टी को सपोर्ट करें. आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ना कि किसी विधायक, ना किसी मंत्री के आप सपोर्टर हों. पार्टी सबसे बड़ी होती है रादर दैन एनी कैंडिडेट्स. सो प्लीज फॉलो ऑल आर पार्टी इंस्ट्रक्शन रादर देन फॉलोइंग योर ओन कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन. यू नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, कि जरूरी नहीं है जिस नेता को आप सपोर्ट कर रहे हैं वो 5 साल आपका ही रहे. व्हाट these days politicians are doing, you must have seen all these. आज इस पार्टी में, tomorrow they are in another party. लेकिन आपकी पार्टी कभी नहीं बदलेगी. Once you will be a supporter of RJD, you will be supporter of RJD forever. So keep all these points in your mind forever. संगठन बड़ा है, हमारी भी मजबूरियां हैं. 12 करोड़ बिहार की जनसंख्या और हमारी बिहार की पार्टी सबसे बड़ी मास पार्टी है. संगठन बड़ा है, पार्टी में बहुत लोग बहुत दिन से जुड़े हैं. ना आफ्टर ऑल वी कैन नॉट गिव एवरीवन टू टिकट टू कंटेस्ट योर इलेक्शन. एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू कंटेस्ट इलेक्शन इन कोलिशन विथ कांग्रेस एंड ऑल दैट parties. So number of seats are also going to be lesser. So हम अपने नेता की मजबूरियों को भी समझने की ज़रूरत है. और पार्टी की, हमारी पार्टी ऑलरेडी 15 साल से सरकार में नहीं रही है. सो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम पार्टी के खराब क्षणों में ज़्यादा साथ दें और तेजस्वी यादव को एक मौका ज़रूर दें.
15 साल आके नीतीश जी को आपने देखा तो उन्होंने 15 साल में क्या किया है? कोई भी डेवलपमेंट कहीं नहीं है, एक्सेप्ट ऑन द पेपर्स, एक्सेप्ट ऑन द मीडिया, एक्सेप्ट इन स्पीचेस। उनका एक अभी स्लोगन आ रहा है, मेरे काम को याद कीजिएगा। कौन सा काम नीतीश जी? एंड आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, कौन सी काम की आप बात कर रहे हैं? वही जो रोज रेप हो रहे हैं बहन बेटियों के साथ हमारे स्टेट में जो रेप हो रहे हैं, उनकी वही काम की याद करेगा बिहार के लोग? या कौन सा ये अभी बाढ़ में जो 80-85 लाख जो बाढ़ में डिस्टर्ब हैं ड्यू टू फ्लड, वो काम याद करें? और आप 7 नंबर सर्कुलर आवास में सो रहे हैं, वही काम को याद किया जाएगा? आपके इतना धूर्तबाज मैंने आज तक कोई इंसान नहीं देखा। और आपको शर्म नहीं आती? यू आर नॉट मैन ऑफ वर्ड्स, आई एम टेलिंग यू। आपने क्या बोला था? मैं कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। एंड वेयर आर यू राइट नाउ? आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू, नीतीश जी। एंड दैट इज वाई आई एम सेइंग, एंड आई हैव बीन सेइंग दिस सिंस मेनी ईयर, दैट यू आर नॉट मैन ऑफ वर्ड्स। आप कब पलटी मार जाएं आपको भी पता नहीं है। देखिए, कुर्सी ही सब कुछ नहीं होती है। यू नो, आदमी का ईमान, आदमी का आइडियोलॉजी, पर्सनालिटी भी कुछ चीज़ होती है। मनी इज नॉट एवरीथिंग, यू नो, पावर इज नॉट एवरीथिंग that you people are running after running. So मैं बिहार के वोटरों से अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ 2 महीने आपके हाथ में है। इस 2 महीने के अंदर आपको अपना डिसीजन ले लेना है कि हमको कैसी सरकार चाहिए अपने राज्य में। और आप लोगों ने 15 साल देखा ही, अब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर शुड नॉट बी एनी सेकेंड थॉट वाइल यू नो कास्टिंग योर वोट। आप लोगों ने 15 साल देखा एंड इट्स एनफ नाउ। इतना समय दे दिया है आप लोगों ने, एंड आफ्टर ऑल देयर इज नो डेवलपमेंट अक्रॉस बिहार। सो आप लोग जाएं और राष्ट्रीय जनता दल के फेवर में वोट करें और एक नई सरकार का गठन करें बिहार में। तभी कुछ पॉसिबल है एज फार एज लाइक डेवलपमेंट्स एंड ऑल लॉ एंड ऑर्डर आर कंसर्न। Otherwise, the people are going to take us straight in hell. So please, again, I'm requesting you people are mature, you people are young blood of our state, go and cast your vote in favor of Rashtriya Janata Dal only, or in favor of Gathbandhan only. Do not cast your vote in favor of these giants. हमारे तेजस्वी जी ने बहुत सपना देखा है आपने बिहार के लिए, और रोज़ वो बातें करते रहते हैं, जब हमारी सरकार आएगी हम युवाओं की नौकरी देंगे, युवाओं की पढ़ाई की प्रॉपर अरेंजमेंट्स करेंगे, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी खोलेंगे, मेडिकल की फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है उसको इम्प्रूव करेंगे डे बाय डे। जितना से ज़्यादा हो सके उससे भी ऊपर बढ़कर अपने बिहार के लोगों को मैं सेवा करने की कोशिश करूँगा। हमारे नेता ने ट्विटर के माध्यम से, अपने स्पीचेस के माध्यम से, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातें कितनी बार कही है। आप लोग प्लीज़ एक बार विश्वास तो करें, बिलीव तो करें, और एक मौका जरूर दें। आखिर आपने मौका मोदी जी को तो दिया ही ना, 2 बार मौका दिया, एंड क्या हो रहा है कंट्री में कुछ भी आप सभी से छुपा नहीं है। जीडीपी की क्या हालात हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की क्या हालात हैं, जॉब डे बाय डे और ईयर बाय ईयर और मंथ बाय मंथ जॉब्स जा रही हैं,
लोगों की। एंड आफ्टर ऑल दिस गवर्नमेंट इज लेस बॉदर अबाउट यू ऑल। वो अपने आराम से एसी घर में सो रहे हैं, आराम से करोड़ों के शूट पहन रहे हैं, करोड़ों के कपड़े पहन रहे हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जॉब जा रही है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है। And that is why I'm keep requesting you guys, please open your eyes. अंधभक्त बनने की जरूरत नहीं है। दिस इज योर कंट्री। Being a citizen of this country, we have to love our country. हमारा कंट्री की जीडीपी जा रही है, हालात बहुत 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 खराब है। पता नहीं 2 4 5 साल बाद क्या हालात हो जाएं, लोगों को खाने पीने की प्रॉब्लम्स होने लगेगी। और फिर मैं बता रहा हूँ, अगर ये बिहार में उसके बाद पता नहीं आपको इलेक्शन का अपॉर्चुनिटी मिलेगा भी, वोट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी मैं श्योर नहीं हूँ। बिकॉज व्हाट दिस पीपल आर डूइंग, लाइक व्हाट बीजेपी पॉलिटिशियन आर डूइंग एंड दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल द टाइम, दे आर ट्राइंग टू डाइवर्ट टू change the constitution of country. वो संविधान बदलने की बातें कर रहे हैं हर दिन। वो पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन वो पिछड़ों के साथ हैं नहीं। आप यूनिवर्सिटी में देख लें, कॉलेजेस में देख लें, ओबीसी की कैटेगरी जो है, दिन पर दिन ओबीसी की सीट्स हैं, जो नंबर ऑफ सीट्स कम किए जा रहे हैं। गरीब और जो पिछड़े वर्ग के लड़के हैं उनको हायर यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम किए जा रहे हैं। पिछड़े वर्ग के लोग प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं, हर जगह आपको रोका जा रहा है। यूपीएससी में आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि उसकी भी सीट्स ओबीसी के लिए कम किए जा रहे हैं। फिर आपका और हम सबका भविष्य क्या होगा, सोचने की जरूरत है। और एक मैं बात और अपने वोटर और स्पेशली बिहार के लोगों से कहना चाहूँगा, इलेक्शन स्टार्ट हो चुका है, वोट कटवा बहुत घूम रहे हैं आपके ज़िले में, आपके कंस्टिट्यूंसी में, आपके विधानसभा में। उनसे हम सभी को बचने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी पार्टी को ही ना प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और अल्टीमेटली ये बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आए हैं। सो दिस थिंग वी हैव टू ऑल्सो कीप इन आवर माइंड। ये जो लड़ाई है ना, चुनाव की जो लड़ाई है, राजद वर्सेस बीजेपी है और किसी के साथ नहीं है। उसके अलावा जो आपके राज्य में, आपके ज़िले में, आपके विधानसभा में घूम रहे हैं, वो वोट कटवा है और कहीं ना कहीं वो बीजेपी को ही फ़ायदा पहुंचाने का काम करेंगे। सो आप सभी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस सारी चीज़ों से बचें और राष्ट्रीय जनता दल के फेवर में वोट करें और एक नई सरकार का गठन करें। आप सभी से एक विनती है कि इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव जी के चेहरा पर विश्वास करें और उनके फेवर में वोट करें। धन्यवाद।